अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हूँ कोण छू, क्यांथी थयो, शू स्वरूप छे मारू करू, कोणा संबंधे वर्गणा ए राखू के ए परहरू, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे मैं कर्या तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। रे आत्मतारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्ममा समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदय धरो। यस के नो? એટલે કે તત્વજ્ઞાનની બાબતમાં વિચારો, જીવન સંસારની બાબતમાં વિચારવાની જરૂર નથી। એ તો લઈને આયા છો, સંસારની બાબતમાં નહીં વિચારો, તત્વજ્ઞાનની બાબતમાં વિચારો। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, આ બધું શું છે અને કોણ ચલાવે છે? એ મારું છે કે એનાથી મારે છૂટા રહેવાનું છે? રાખવું કે પરહરું? પરહરું એટલે એને ભળી જવું કે છૂટા રાખવું? એનો વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે મેં કર્યા તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વનું। તો મને ખબર પડી કે આ શરીર જ હું નથી, પછી રાખવા ના રાખવાનો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો? જે કઈ સંજોગો, સંબંધો, સત્તા, સંપત્તિ શરીર સાથે છે, પણ હું શરીર જ નથી, તો પછી આ બધું મારું થયું? માટે હું તો શુદ્ધ આત્મા છું। તો આ બધું શું છે? કુદરતી રચના। વિચાર કરે તો ખબર પડે ને। એના માટે કીધું કર વિચાર તો પામે છે। એના માટે સિદ્ધાંત તત્વને સમજવા માટે, આ મન વચન કાયાની અવસ્થાઓને સમજવા માટે નહીં। સમજાય છે? મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થાઓ કોણ ચલાવે છે, કઈ રીતે ચાલે છે, એના માટે સમજાય છે? કુદરતી કઈ રીતે ચાલે છે, વ્યક્તિ સાથેના શું હિસાબો છો, એની કોઈ વેલ્યુ નથી। આને મને અપમાન આપ્યું, માન આપ્યું, આ મારું છે, આ તારું છે, આ મેં કર્યું, તે કર્યું, એની કોઈ વેલ્યુ ને એના ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર નથી। પણ આખું જીવન જે છે, લાઈફ, એ કોણ ચલાવે છે? તો કે કુદરત ચલાવે છે। પછી લાઈફની અવસ્થાઓ માટે વિચારવાની જરૂર નથી। આ મન વચન કાયા કોણ ચલાવે છે? કુદરત ચલાવે છે। તો પછી એને વિચારવાની જરૂર નથી, બસ કુદરતી રચના જોયા કરો। વિચાર આવે તોય કુદરતી રચના, વાણી આવે તોય કુદરતી રચના, વર્તન કરીએ તોય કુદરતી રચના। આને સમજવા માટે વિચારવું પડે પહેલા। શું કીધું? આ વિજ્ઞાનને સમજવા માટે વિચારવાનું છે। મન વચન કાયા શું કરવું, શું ના કરવું, એના માટે વિચારવાનું નથી। સમજાય છે? હા, તો એટલે તો કીધું મેં તમને, વિજ્ઞાન માટે વિચાર કરવાનો છે, મન વચન કાયાની અવસ્થા માટે વિચાર કરવાનો નથી। એ તો કુદરતી રચના છે। ખ્યાલ આવ્યો? મારે કેમ જીવવું, કેમ ખાવું, કેમ પીવું, કેમ સૂવું, એ માટે વિચારવાની જરૂર નથી। કુદરત સંજોગ આપશે એ પ્રમાણે તમારે જીવવાનું છે। સમજાય છે? કોઈ કે મને બાળપણ બહુ ગમે છે, તોય પણ એનો એન્ડ આવે છે, કારણ કે કુદરતી રચના। કોઈ કે યુવાની ગમે છે, તોય એન્ડ આવે, કારણ કે આપણા હાથમાં, જે આપણા હાથમાં નથી એના માટે વિચારવાની જરૂર, પણ આપણા હાથમાં શું છે? આ બધી અવસ્થાઓ કઈ રીતે ચાલી રહી છે એનું વિજ્ઞાન જાણવું। હું કોણ છું એનું વિજ્ઞાન જાણવું। વિજ્ઞાન એટલે સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન અને વ્યવહાર એટલે સામાજિક જ્ઞાન, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ। વિજ્ઞાન એટલે કે સનાતન સિદ્ધાંતો, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, યુનિવર્સલ ટ્રુથ, અને વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ ટ્રુથ, સોશિયલ ટ્રુથ, ધાર્મિક સત્ય, સામાજિક સત્ય, આધ્યાત્મિક એટલે સનાતન સત્ય। બીજું એક પ્રશ્ન એમ છે કે આપણે ક્રમિક માર્ગમાં એમ શીખ્યા છે કે અષ્ટમી, ચતુર્દશી અથવા કઈ પર્વના દિવસે આ નહીં કરવું, તે નહીં કરવું, લીલોતરી નહીં ખાવાની, તો આમાં સાયન્સ શું છે? એ
પ્રકૃતિ માટે સારું છે. પ્રકૃતિ 5 મહાવ્રત માટે સારું છે. જીવ હિંસા ઓછી થાય, ભાવ સારા બને, એના માટે સારું છે. ખ્યાલ આવે ને? સત્ય, અહિંસા, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહ, આ બધું એનાથી પળાય, આ નીતિ નિયમોથી. પણ એ 5 પાળવાના આના માટે નહીં. અને એકે મહાવ્રતની જરૂર નથી. ના સમજ્યા? આના માટે છે. ખ્યાલ આવે? કોઈ વ્યક્તિને એમ લાગતું હોય કે મારે સંસારમાં રહી અને આ વિજ્ઞાન નથી સમજવું, એના કરતાં સંસાર માણવો નથી, તો મારી પાસે સમય મળે તો મારે વિજ્ઞાન સમજવું છે. તેથી સંસાર ખોટો છે એવું સાબિત થતું, તારી કેપેસિટી નથી. બાકી રામકૃષ્ણ બધા ભણેલા જ હતા ને, બોલતા નથી, એ કુંવારા હતા. તો પછી એટલે પણ તારી કેપેસિટી ના હોય, તારે ના ભણવું તો તારો વ્યક્તિગત વિષય છે. એને સનાતન સત્ય ના કહેવાય. એ સબ્જેક્ટ ટુ યોર ઇન્ડિવિડ્યુઆલિટી. ઇટ્સ નોટ લો ઓફ નેચર. એ ભણવાથી જ વિજ્ઞાન સમજાય કે ના ભણવાથી સમજાય એવું જરૂરી. વિજ્ઞાન એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. વિજ્ઞાનને લાઈફ કેમ જીવવી, બહારની લાઈફ, એ વિષય એ તમારા વ્યક્તિગત ઇન્ટરેસ્ટ છે. સમજાય છે? મારી વાત સમજાય છે? જ્યારે મન વચન કાયની બધી અવસ્થા કુદરતી રચના જોવાની છે, પછી કુંવારા હોય કે પરણેલા હોય, શું ફેર પડે છે? કુદરતી રચના છે તો પછી બોજો શેનો? આપણને જે છે આપણા હાથમાં પણ નથી. સમજાયું ને? આ બધી સામાજિક અને ધાર્મિક વાતો છે, ડુઅરશીપના બેઝ ઉપર, ફોર ગુડ લાઈફ, સારું જીવન જીવવા માટે છે. અને આ વિજ્ઞાન જન્મ મરણથી મુક્ત થવામાં, બંનેના એંગલ જુદા છે. પેલું સારું જીવન જીવવા માટે છે, પંચ મહાવ્રત, અને વિજ્ઞાન જન્મ મરણથી મુક્ત. બંનેના એંગલ કેવા છે? જુદા છે. એટલે બંનેમાંથી કશું ખોટું નથી. જેને સારું જીવન જીવવું છે એને ધર્મને ફોલો કરે, 5 મહાવ્રત પાળે, એમાં કશું ખોટું નથી. અને જેને મોક્ષે જવું હોય એને આध्यात्म विज्ञान समझવું પડશે. बस अनंत जन्मों से हम लोग मनुष्य देह के लिए बहुत जन्मों, अनंत जन्मों के बाद में मिला है मनुष्य देह. यस. और 1 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बने, फिर पास करने के बाद मनुष्य भोग मिला है. अनंत भोग के बाद मिला. मनुष्य देह का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. यस यस. तो अभी ये भी कहते हैं कि इसी देह से हम लोग मोक्ष जाएंगे. अभी इसी मनुष्य देह से ही मोक्ष मिलेगा, या मनुष्य भव से ही मुक्ति है. यस. मनुष्य देह का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. यस. तो ये पुरुषार्थ में इससे कोई संबंध क्यों नहीं है इसके साथ में? क्योंकि बिना मन वचन काया पुरुषार्थ कैसे करेगा इंसान? अगर मन वचन काया ही नहीं रहेगा, पुरुषार्थ कैसे करेगा? कैसे पॉसिबल है, मतलब लॉजिकली? मन वचन काया नहीं होने से पुरुषार्थ कैसे करेगा, मतलब समझा नहीं मैं. तो हम लोग को मन वचन काया कुदरती रचना है. यस. पुरुषार्थ नहीं है. वो कुदरती रचना देखता है, वही तो पुरुषार्थ है. और मैं करता हूँ, मेरा है, वो अज्ञान है. वो अज्ञान पुरुषार्थ है. तो राग द्वेष होगा तो कर्म बनेगा. कुदरती रचना देखोगे, राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा. ये भी तो पुरुषार्थ है. कुदरती रचना देखना वो भी पुरुषार्थ है. और क्रिया को कर्ता मानना वो भी पुरुषार्थ है. वो अज्ञान पुरुषार्थ है. अज्ञान से राग द्वेष होगा और विज्ञान से राग द्वेष नहीं होगा. पुरुषार्थ में मन वचन काया का रोल नहीं है. पुरुषार्थ में ज्ञान दर्शन का रोल है. अज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है, ज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है, और विज्ञानी को भी ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है. मगर अज्ञानी मानते हैं कि क्रिया को पुरुषार्थ मानता हूं, ये उनका अज्ञान है. मगर पुरुषार्थ तो अज्ञान से ही करता है, ज्ञान दर्शन से ही करता है. आप समझे? मैं राग द्वेष क्यों करूंगा? क्योंकि मैं क्रिया को, वस्तु को कर्ता और मालिक ही मानता हूं. तो मेरी दृष्टि में गलती है तो राग द्वेष तो होगा ही. मेरी दृष्टि में मालूम है कि ये पाप है और मैंने गलत किया है, ऐसा मैं मानूंगा तो प्रायश्चित तो करूंगा. मगर ये अज्ञान है. मगर जब विज्ञान आएगा तो कहेगा तुम कोई भी क्रिया के कर्ता भी नहीं हो, मालिक भी नहीं हो, तो फिर राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जो भी होता है यू आर द ओनली ऑब्जर्वर. जो भी होता है वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना को देखते जाओ. यू आर द ओनली विटनेस. यू आर नॉट डूअर, यू आर द ऑब्जर्वर विद द हेल्प ऑफ लाइट ऑफ द सोल. आत्मा के ज्ञान प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को देखती जाए तो ये कुदरती रचना है, और मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो लक्ष्य रखे, खत्म हो गई बात. इसमें और ज्यादा पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है बताइए? कोई कहेगा, कोई किसी को भी पूछो कि भी मैं
कुदरती रचना देख के शुद्धात्मा में रहता हूं तो मेरे को राग द्वेष नहीं होता है, तो क्या उससे और कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है? तो कहेगा नहीं है, क्योंकि राग द्वेष नहीं करना वही तो वितरागता है, इससे आगे कहां बढ़ना है? तो फिर आप समझे ना, लोगों को आसान बात समझने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और डिफिकल्ट वाली बात आसानी समझ जाते हैं। आप समझे? एक व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, मानो कि आत्मा को तो मैं मानता हूं, मगर आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? न मेरे को दिखता है, न मेरे को अनुभव है, सिर्फ मानता हूं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने बोला वही तो प्रश्न मैं करता हूं, जब शादी करते हैं तो बीबी को जानते नहीं, मानते, फिर स्वीकार क्यों करते हो? बोलते नहीं है, ऐसा भी करते हैं ना कि जो भी होगा हो देख लेंगे, दोनों ये मानते हैं ना। अभी सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो भी कर सकते शादी। आप समझे कि नहीं? शादी के समय तो हम नहीं सोचते हैं कि कल क्या होगा, सोचते हैं तो फिर। और हमारे परिवार में भी लोगों को देखते हैं हम कि वो कितना आनंद उठाते हैं, फिर भी हम करते हैं, तो ऐसी बात है। तो ये उसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यू हैव टू पुट इन अ प्रैक्टिस एंड डू द सेपरेशन ऑफ रिलेटिव एंड रियल। ऑल द रिलेटिव्स इज कुदरती रचना एंड रियल इज आई एम, दैट्स इट। ये दुनिया के अंदर धर्मगुरुओं ने उधर ट्रेंड चलाया, क्रिया के माध्यम से, पाप पुण्य के माध्यम से ट्रेंड उधर गलत चलाया। ये कहा तुम पुण्य करोगे तो ही अच्छी लाइफ मिलेगी शरीर से, पाप करोगे तो बुरी लाइफ मिलेगी। क्या बताया? मन से अच्छे विचार करो, जबान से अच्छी वाणी बोलो और व्यवहार अच्छा करो, तभी आपको अच्छा लाइफ मिलेगा, या तो मुक्ति की ओर आगे जाएंगे, जो भी कहेंगे वो। और मैं कहता हूं कि ये सब कुछ होता है क्योंकि मैं हूं, बोलते नहीं है। उनके आधार से मैं नहीं हूं, मेरे आधार से ये है। यस और नो? तो यहां तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। विचार अच्छे करो, जबान अच्छी बोलो, क्रिया अच्छी करो, यहां मैं तो आता ही नहीं हूं। नहीं समझ में आया? भाई मैं हूं तो शरीर है, कि शरीर है तो मैं हूं? और वैल्यू किसी करते हैं? अभी आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? मुक्ति की ओर आगे कैसे चल आऊंगे? अज्ञान कैसे कटेगा? यही तो बात है। ट्रेंड गलत हो गया। तो पहले भी हमारे जो महात्मा थे वो क्या मानते थे? ये गलत प्रेजेंटेशन हो गया और इसका अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया। हालांकि कहने वाले की सोच गलत नहीं थी, मगर लोग इसको समझ नहीं पाए क्योंकि दे आर नॉट डेवलप पीपल। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम चंदूलाल हो और तुम्हारी अंदर, और इसीलिए सभी में देखो हाँ कि ये प्रकृति है, इसके अंदर परमात्मा है। तो प्रकृति के आधार से परमात्मा ये सेकेंडरी हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैंने ट्रेंड बदल दिया। दिस इज नॉट करेक्ट विजन। ऐसा कहो मैं शुद्धात्मा हूं और प्रकृति या चंदूलाल वो कुदरत ने कर्मों की भुगतान का साधन दिया है, और जब कर्म खत्म हो जाएगा चंदूलाल को जला दिया जाएगा। बट आई एम ऑलवेज। यस और नो? तो मैं चंदूलाल हूं, चंदूलाल के अंदर हूं, ऐसा है? बिकॉज आई एम चंदूलाल इज देयर। अगर मैं नहीं हूं, चंदूलाल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? तो गलत हो गया प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? इंटेंशन गलत नहीं था, प्रेजेंटेशन गलत हो गया, और बाद में लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं कहो, मैं शुद्धात्मा हूं और ये शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, और जैसा कर्म खत्म हो जाएगा साधन को जला दिया जाएगा, पर मैं तो वही का वही रहूंगा। So because I am, शरीर रहे या ना रहे मैं तो हूं ही। अगर मैं नहीं होगा तो रीबर्थ कैसे होगा? इनका तो नहीं होता है। समझ में आया? तो दृष्टि की बात है, आर्ट ऑफ विजन। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि ये हाथ ऊपर उठाया, ये कौन उठाया हाथ? ऐसा मतलब कंफ्यूज होता है कि कौन उठाया? प्रकृति ने उठाया। मतलब नहीं सोचा तो उठा हो। हाँ, फिर सोचा भी प्रकृति ने। प्रकृति ने तो किसने सोचा? सही बात है, आत्मा नहीं सोच सकता है।
एक भी कहता है मैंने शादी किया तो पत्नी लेकर आया और इसीलिए मैं पति हूँ। मैंने बोला नहीं, पत्नी मिली है इसीलिए पति हो, अगर नहीं मिली तो पति नहीं हो तुम। आप समझ में आ गया? सो कर्म इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। इसमें किसी की स्वतंत्रता, वो डिपेंड है, वो मानते हैं कि मैंने किया, मगर ऐसा भ्रांति है, सब भ्रांति। हम विदेश में जाते हैं तो बच्चे लोग टीनेजर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, स्वामी दिस इज माई पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मतलब वाइफ पर्सनल होती है, लाइफ पर्सनल होती है किसी की? ये लाइफ तुम्हारी माता पिता के साथ जुड़ी है, भाई बहन के साथ जुड़ी है, पति पत्नी के साथ जुड़ी है, परिवार के साथ जुड़ी है, समाज के साथ जुड़ी है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर के साथ जुड़ी है। फिर तुम कहते हो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल हो सकती है? कोई किसी व्यक्ति की लाइफ पर्सनल नहीं हो सकती है, डिपेंड ऑन हिज कर्म। समझ में आया? दृष्टि पर्सनल हो सकती है, जीवन पर्सनल। तो लोगों की सोच नहीं है ना, बोलते तो है, समझ नहीं है ना। कभी किसी की बाह्य लाइफ मन वचन काया पर्सनल नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ पर्सनल हो सकता है क्योंकि वो अंदर की बात है, बाहर की बात हमारे ऊपर अधीन नहीं है। आप समझे? मन में समझ में आ गया कि भाव मन है और द्रव्य मन भाव मन। और ये भी बुद्धि कैसे रहती है, मतलब जो लोग सोचते हैं बुद्धि, वो सिर्फ डिस्चार्ज रहती है बुद्धि? दोनों रहेगी ना। अच्छा, दोनों रहेगी, उसमें भी दोनों। डिस्चार्ज बुद्धि वो डिस्चार्ज के लिए काम करेंगे, जीवन जीने के लिए काम करेगी, वो ऑटो मोड है। और चार्ज बुद्धि है, वो आपके ज्ञान दर्शन को समझने के लिए हेल्प करेगी, नया कर्म बनाने के लिए, भाव करने के लिए, इंटेंशन के लिए, गोल ऑफ द लाइफ के लिए वो हेल्प करेगी। हाँ, डिस्चार्ज चीज और चार्ज चीज। डिस्चार्ज मतलब ऑटो मोड, चार्ज का मतलब पुरुषार्थ वाला ज्ञान दर्शन। चीज मतलब ज्ञान दर्शन। एक पुरुषार्थ वाला ज्ञान दर्शन है जिसके आधार से आप पुरुषार्थ करते हैं फॉर फ्यूचर्स, और दूसरा डिस्चार्ज वाला है जिसके आधार से अवस्था समझ में आती है, ये मेरे माता है, पिता है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा बुरा है, ये सब जो ज्ञान दर्शन है वो डिस्चार्ज है। सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस इज अ डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तीनों डिस्चार्ज भी है, चारों डिस्चार्ज भी है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार लाइव भी है। आज का लाइव नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज, आज का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। जो मन वचन काया और अवस्था के साथ जुड़ा है सब डिस्चार्ज है। और इसके ऊपर जो सोचता है अपने वर्तमान ज्ञान फॉर फ्यूचर्स, अध्यात्म की बात नहीं है, कोई भी प्रकार की भविष्य की बात सोचता है फॉर फ्यूचर, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस लाइफ। जैसे कोई व्यक्ति ने शादी कर लिया, 50 साल हो गए, फिर बाद में सोचता है कि नहीं ऐसी वाइफ होनी चाहिए, कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, तो किसके लिए सोचते हैं? इस वाइफ, इस बर्थ के लिए, बस तो पुरुषार्थ है। आज मैंने चार्टर अकाउंटेंट के बन गया और मैंने प्रैक्टिस कर दिया और मैं लाख रुपया महीने कमाता हूँ, और मेरा मित्र डॉक्टर बन गया, वो भी मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, मगर आगे जाके उन्होंने डॉक्टरी ले लिया, वो डॉक्टर बन गया, अभी हर महीने 10 लाख कमाता है। तो मैं 5-10 साल के लिए सोचूंगा अगर मैंने भी डॉक्टरी किया तो अच्छा था, मगर वो फॉर नेक्स्ट। यस, जो मन वचन काया कनेक्टेड विद दिस लाइफ इज टू बी कॉल्ड ए डिस्चार्ज। जो मन वचन काया का यूज करते हो नॉट फॉर दिस लाइफ, इट इज फॉर फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट बर्थ टू, ये चार्ज है। जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वो तो डिस्चार्ज है। इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्लानिंग आज का है या 50 साल के बाद का है, मगर वो डिस्चार्ज है। मैं कहूंगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया, पैसा कमाऊंगा, फिर बंगला लूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, सब डिस्चार्ज है। क्योंकि सब्जेक्ट टू दिस लाइफ, सब्जेक्ट टू दिस बर्थ इज डिस्चार्ज। समझ में आया? लाइन ऑफ डिमार्केशन। जो ये लाइफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये लाइफ के आधार से मेरे को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव से मैं नया कोर्स डाल रहा हूं, तो वो चार्ज हो गया। इस लाइफ के साथ कनेक्शन, मैं यहाँ रहता हूँ, फिर कहूंगा यहाँ से अच्छा मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा था, अभी क्या करोगे? ये बर्थ के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए, तो वो चार्ज है। समझ में आया? जो वस्तु प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल नहीं है विद दिस लाइफ, वो सब चार्ज है। जो इस बर्थ के लिए करते हैं, चाहे रिजल्ट आए या न भी आए, मगर आपकी विचारधारा इस लाइफ के साथ जुड़ी है। जैसे मैं कहूंगा पहले मैं बड़ा होकर बंगला लूंगा, बड़ा महल जैसा, फिर मैं लूं या ना लूं, मगर डिस्चार्ज है। लूं तो भी डिस्चार्ज, नहीं लूं तो भी डिस्चार्ज, और विचार आए वो भी
डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब कुदरती